So here today we are talking about the second part of Coelenterata. Okay, in the last class I have told it multiple times that today we will be talking about the body layers. Okay, and then I have said that we will cut a chunk out of the main body of the Coelenterata and we will try to see the ectoderm, the endoderm and the mesoglia and what are the cells present in these layers. That is what our discussion is today. It is all about. As well as we will be talking about stinging cell and the mechanism of stinging cell also we will be talking it out today. So here what I have done, I made a blind sac kind of body, and we know that if this is a blind sac kind of body, then this is called as gastrovascular cavity. Okay, and gastrovascular cavity, one opening blind sac kind of body, is not it. So in this regard, this layer which is lining the gastrovascular cavity, the layer which is lining the gastrovascular cavity, that is what? That is endoderm, or we can also call it as what? Gastroderm. The middle layer, this region, the middle layer, the middle portion between the two layers, that is mesoglia, and the outermost layer is called as ectoderm. So I have cut out a chunk from this particular animal, from the Coelenterata, and I have brought it down over here. And when I do this, I know that this layer is this one, which is endoderm or gastroderm, because it is lining the gastrovascular cavity, hence we can call it as gastroderm. The middle layer is mesoglia, and the outermost layer, that means this layer, the outermost layer, it is ectoderm. So we will see what are the cells present in these different layers and what are the respective functions of each and every cell in the body of a coelenterate, okay, being in ectoderm, being in endoderm or mesoglia, wherever. We are not going to start by talking about all these cells. Mesoglia में क्या क्या है and endoderm में क्या क्या है, means क्या क्या cells है, that we will discuss after we finish up with our discussions of ectoderm. So the outer layer ectoderm, it consists of 7 types of cells, okay, and each of these cells will show a division of labor. That means all of them are going to do some different kind of functions. Starting with the first cell, which is called as epitheliomuscular cell. Epithelio माने epithelium, that means the outermost layer का cell. और क्या सेल है? मस्कुलर सेल. सो epitheliomuscular cell माने epithelium का muscular cell. Okay, what does this cell do? This cell is responsible for operating all the different kinds of body movement. Suppose in the last class I told you, when the food will come near the tentacles of the hydra will use its tentacle to bring the food towards its mouth. There are also some stinging cells present in the tentacles. Sometimes the hydra might also use its tentacles to kill its prey and then eat it. Okay, so there has to be some kind of movement in the tentacle in order to bring the food near its mouth, or in order to sting a prey and bring it in the mouth. It will have to do some kind of movement with its tentacles. Who will help the organism to do that particular movement? This cell. Epitheliomuscular cells. Epitheliomuscular cells are present on the outermost layer of the body, and it generally helps to manipulate the body movements, okay, especially the movement of tentacles, or especially when the hydra we know that the hydra is sedentary. So whenever it will not find more sources to eat, it will move from that particular place to another place. So that movement, in doing that movement, it will do swimming, it will do somersaulting, whatever it will do, whatever maybe its mode of locomotion. But whenever it will move from one place to another, for doing that movement, it will have to have some this kind of cells which will bring that movement in its body, with the help of which it can do locomotion, it can move from one place to another. So in order to change its place, in order to do locomotion, in order to manipulate its tentacle, who is going to help? Epitheliomuscular cell is the one which will help. Okay, the next one is epithelioglandular cell. Now what does this cell do? In the diagram of hydra, I made a basal disc, and I said that in the basal disc there are some adhesive substances present, with the help of which hydra attaches itself with some substrata, and whenever he will find that the necessary food that is required for it is not present, it will detach itself and it will move from that place to another. So basal disc, adhesive nature, काय को, कैसे, कहाँ से आया? This cell is responsible. So the glandular cell, epithelio-glandular cell, glandular माने secretion देने वाला cell. So where is this cell present? This cell is present in the basal disc. What does it do? It provides that sticky nature to the basal disc, with the help of which
sedentary animals can attach themselves. If you ask me, sir, what will happen in case of sessile, what will happen in case of free swimming, उनका ये सेल का काम क्या होगा? उनमें ये सेल रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि उनमें इस सेल का ज्यादातर काम नहीं दिखाई देता है, ड्यू टू विच इन द फ्री स्विमिंग फॉर्म और इन द sessile form this cell will be in a reduced state. That means it will be present in the body but it will not be highly functional, or you can say it will be non-functional. Okay, the next cell, number 3, is called as what? Interstitial cell, and this cell is a totipotent cell. Totipotent cell, I have said you earlier also that totipotent cell, maybe I have said or not, I don't remember. I told you na, in sponges, archaeocytes, the cell which can transform itself into any other cell, okay na, that is totipotent cell. So they also have a totipotent cell which can convert it into any other cell as per the requirement. The fourth cell is sensory cell, and what is the function of sensory cell? नाम खुद ही बोलता है, it senses some changes in the body. Okay, if there occurs any kind of movement in the tentacles, the body should know about it and it should respond accordingly. If the tentacles is bringing the food like this, the mouth should open. The mouth, if the mouth stays closed, then what is the point of bringing the food with the help of tentacles? So whenever the tentacles is about to move, at that time the sensory cell will detect कि फूड आया है, इसलिए तो टेंटाकल्स मूव कर रहा है, तो मुझे माउथ को भी खुलना पड़ेगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये इंफॉर्मेशन कि टेंटाकल मैनिपुलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, दैट मींस फूड ला रहा है, तो ये खबर मुझे माउथ तक पहुंचाना पड़ेगा, तब माउथ खुल जाएगा, रेडी रहेगा फूड को लेने के लिए. सो इसलिए देखो, सेंसोरी सेल प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इपिथेलियोमस्कुलर सेल. मूवमेंट कौन कर रहा है? इपिथेलियोमस्कुलर सेल उसके बेस में है. अगर वो सेल मूवमेंट कर रहा है, माने किस कारण के लिए कर रहा है, बॉडी को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, तो सेंसोरी सेल सेंस करके बॉडी को इंफॉर्मेशन दे देता है. सेंसोरी सेल इंफॉर्मेशन अगर देगा तो उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरा जगह कैरी कौन करेगा? नर्व सेल. सो इनका नर्व सेल कैसा होता है? एपोलर न्यूरॉन. लास्ट क्लास के लेक्चर में मैंने समझाया था. एपोलर न्यूरॉन, इट रिसीव्स एंड ट्रांसमिट इंपल्सेस. इट कैन, पढ़ाया था, टेक इंपल्सेस फ्रॉम एनी डायरेक्शन, गिव इंपल्सेस टू एनी डायरेक्शन. 6, स्टिंगिंग सेल. ओके, स्टिंगिंग सेल के बारे में आज हम लोग ब्रॉडली बात वैसे भी करेंगे. यहां पे बस मैंने फंक्शन लिख दिया कि स्टिंगिंग सेल क्या करता है. डिफेंस, कोई अगर प्रीडेटर आया उसको स्टिंग करके उसको बेहोश कर देगा, डिफेंस. अटैक, इट विल अटैक इट्स प्रे, ठीक है ना. एंड एनकरेज. एनकरेज मीन्स अटैचमेंट. Holding to one particular place is what encourage means. That means there are some stinging cell present in the body of coelenterids. Those stinging cells are not used for the purpose of stinging. Those stinging cells are rather used for making a firm anchorage, that is for holding a particular place firmly. Okay, कौन सा stinging cell है वो जो ये काम करता है? ये हम लोग को types of stinging cell में मिल जाएगा. ठीक है, तो ये है तुम्हारा 6 types of cell doing their respective function. There is another cell, as I have written, there are 7 types of cell. So you can pause the video and you can make the notes out of here. Now I will rub it and now I will talk about the 7th type. Okay, so जो 7th type है, वो 7th type का क्या नाम है और वो 7th type क्या करता है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं एक ही साथ. तो 7th type जो है उसका नाम है क्या? उसका नाम है जार्म सेल. ठीक है, एंड वी नो दैट जार्म सेल फॉर्म्स क्या? गैमेट्स. बट जार्म सेल में ना थोड़ा सा लोचा है. लोचा क्या है? लोचा ये है कि एज आई टोल्ड यू, इन द फाइलम सिलेंटरेटा ऑल्सो वी विल गेट 3 क्लासेस, इज नॉट इट? सो जो क्लास 1 है, क्लास 1 का नाम है हाइड्रोजोआ. जो क्लास 2 है उसका नाम है स्काइफोजोआ, एंड जो क्लास 3 है उसका नाम है एंथोजोआ. ठीक है, जार्म सेल फॉर्म्स गैमेट. जार्म सेल इज लोकेटेड ऑन एक्टोडर्म का लेवल इस पे, जबकि जार्म सेल इज लोकेटेड ऑन द एंडोडर्म का लेवल इन दोनों पे. तो इन दोनों पे जो जार्म सेल है वो एंडोडर्मली लोकेटेड है. ठीक है, दैट इज गैस्ट्रोडर्म में लोकेटेड है, एंडोडर्मली लोकेटेड है. एंड हाइड्रोजोआ इज दैट ओनली क्लास जिसमें द जार्म सेल्स विल बी रिटेन, और वी विल बी यूजिंग द टर्म जार्म सेल एज अ टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ओनली इन केस ऑफ क्लास 1, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? हाइड्रोजोआ. ठीक है ना.
तो जार्म सेल जो है अगर वो हाइड्रोजोआ का अगर हम लोग लिख रहे हैं, हाइड्रोजोआ का बॉडी वॉल, सपोज हाइड्रा का हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रा का कंसीडरेशन किया है क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसी का डायग्राम बनाया था। तो हाइड्रा हाइड्रोजोआ के अंदर आता है। तो हाइड्रा का जब हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्टोडर्म में 7 टाइप्स ऑफ सेल लिखेंगे। लेकिन आज अगर हम लोग जेलीफिश का कर रहे हैं, ओरेलिया, ओरेलिया इसके अंदर आता है, स्काइफोजोआ के अंदर, या फिर कोरेल, कोरेल इसके अंदर आता है। तो स्काइफोजोआंस या एंथोजोआंस का जब हम लोग लिखेंगे तब एपिडर्मिस में कितना सेल होगा, 6 होगा। जार्म सेल एब्सेंट होगा क्योंकि जार्म सेल तो एंडोडर्म में होगा, है ना। तो यहां पे हम लोग हाइड्रा के बेसिस पे कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक्टोडर्म में 7 टाइप्स ऑफ सेल लिखा, बिकॉज हाइड्रा बिलोंग्स टू दिस क्लास। तो आई होप ये वाला पोर्शन तुम लोग का समझ में आया है। नाउ वी आर मूविंग टू मेसोग्लिया। मेसोग्लिया में क्या क्या है, देन वी विल मूव टू गैस्ट्रोडर्म। मेसोग्लिया में ज्यादातर ऐसे भी कुछ नहीं है। मेसोग्लिया में जो फ्लूइड है, वी नो दैट फ्लूइड इज मेड बाय द गैस्ट्रोडर्म एज वेल एज एक्टोडर्म, दोनों मिलके वो फ्लूइड बनाता है। फ्लूइड का कंपोजिशन जो है वो मेसोहाइल के जैसा ही होगा, लेकिन मेसोहाइल लेयर का जो फ्लूइड था, स्पॉन्जेस का मैं बात कर रहा हूं, स्पॉन्जेस में मेसोहाइल लेयर का जो फ्लूइड था वो बहुत ज्यादा वाटरी था। इसमें क्या हो जाएगा, द फ्लूइड विल बिकम वेरी मच थिकर, ठीक है। एंड इन दिस फ्लूइड वी विल फाइंड सम काइंड्स ऑफ सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस फ्लूइड, ओके। तो मेसोग्लिया में हम लोग क्या लिखेंगे, मेसोग्लिया में वी विल राइट, वेट सेकेंड, मेसोग्लिया में हम लोग लिखेंगे दैट मेसोग्लिया इज अ फ्लूइड फील्ड लेयर secreted by the gastroderm mainly, okay. It is thicker than the mesohyl layer of sponges, ठीक है। इट इज थिकर देन द मेसोहाइल लेयर ऑफ स्पॉन्जेस। अगर इसका भी रीजन पूछो, क्यों, क्योंकि इनमें म्यूकोपोलीसेकेराइड जो होता है, वो म्यूकोपोलीसेकेराइड का जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन है हायर, ठीक है। तो in case of mesoglia the mucopolysaccharide concentration is higher, mesohyl में that is little bit lower, that is why mesoglia is little bit thicker या गाढ़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखने का है। एंड इसके साथ एक और चीज याद रखने का है कि मेसोग्लिया लेयर में अगर सेल प्रेजेंट है तो क्या सेल प्रेजेंट है। तो मेसोग्लिया लेयर में only one type of cell is present, only one type of cell is present। और ये जो वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है ये कौन है, ये है एपोलर न्यूरॉन। तो एपोलर न्यूरॉन एकदम डेंसली स्केटर्ड वे में हम लोग को दिखाई देता है इन मेसोग्लिया लेयर, ठीक है। अदर देन दिस बाकी और कोई भी सेल मेसोग्लिया में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे एक्टोडर्म एंड मेसोग्लिया का डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्म। एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्म में क्या क्या सेल है एंड वो सेल्स क्या क्या करता है, ठीक है। पॉज करके नोट बना लो। तो ये है हमारा एंडोडर्म का डिस्कशन। एंडोडर्म में भी हम लोग को क्या क्या सेल्स देखने को मिलेगा, लाइनिंग द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। पहला एंडोथेलियो मस्कुलर सेल, मस्कुलर सेल है माने कंट्रैक्शन करेगा, कंट्रैक्शन करेगा माने मूवमेंट होगा। इस मूवमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, देखो ये दो सेल को समझना पड़ेगा, एंडोथेलियो ग्लैंडुलर सेल एंड एंडोथेलियो मस्कुलर सेल। ग्लैंडुलर सेल क्या करता है, सीक्रेट्स एंजाइम्स इन द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्यों एंजाइम सीक्रेट करता है इन द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, क्योंकि हमको पता है इन केस ऑफ सिलेंटेरेट्स देयर डाइजेशन, मोड ऑफ डाइजेशन क्या है, बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर। फर्स्ट एक्स्ट्रासेलुलर देन इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर माने डाइजेशन इज ऑकरिंग वेयर, इन द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। वहां पे डाइजेशन अगर कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है, कुछ एंजाइम्स कर रहा है। उन एंजाइम्स को किसने रिलीज किया, इसने रिलीज किया। फूड जब गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर आता है तो ये वाला सेल एंजाइम्स का रिलीज कर देता है। तब ये सेल क्या करता है, ये सेल कुछ मूवमेंट क्रिएट करता है इन द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जिस मूवमेंट के वजह से ये एंजाइम और वो इनकमिंग फूड एक दूसरे के साथ मिक्सअप होगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। एंड जब फूड
and the enzyme will come in contact with one another, this will result in the breakdown of the food. That means this will result in what? Extracellular digestion. यही यहां पे लिखे हैं. एंडोथेलियोमस्कुलर सेल क्या कर रहा है? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द फूड इन द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. अंदर लाना, बाहर निकालना, ठीक है ना. तो ये भी एक मूवमेंट है, बॉडी के अंदर कुछ सामान को लाना फिर उसको बाहर निकाल देना. तो ये कौन करने में मदद कर रहा है? ये मूवमेंट कौन करने में मदद कर रहा है? ये वाला सेल. प्लस हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ द फूड विद द एंजाइम्स, दैट इज फैसिलिटेट्स एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन बाय कॉजिंग अ चार्निंग मूवमेंट. चार्निंग मूवमेंट माने ये जो मूवमेंट एक क्रिएट हुआ है इनसाइड द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जो हमारा एंजाइम्स एंड फूड को एक दूसरे के साथ मिक्स करता है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज चार्निंग मूवमेंट, जो ये सेल करता है. इसके अलावा ग्लैंडुलर सेल वहां पे एडिसिव नेचर का काम कर रहा है. यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल एंजाइम सीक्रेट कर रहा है. ग्लैंडुलर कुछ तो सीक्रेट करेगा, तो यहाँ पे एंजाइम सीक्रेट कर रहा है. बाकी इंटरस्टिशियल सेल, टोटिपोटेंट सेल इसमें भी है, सेंसोरी सेल इसमें भी है, नर्व सेल भी प्रेजेंट है. स्टिंगिंग सेल इज एब्सेंट. ऑब्वियसली पेट के अंदर लाइनिंग द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, स्टिंगिंग सेल वहां पे रखने का कोई मतलब नहीं है. अंदर में तो कोई आएगा नहीं जिसको स्टिंग मारना है. स्टिंग मारने का जरूरत बाहर के तरफ है. तो स्टिंगिंग सेल इज प्रेजेंट इन द एक्टोडर्म. स्टिंगिंग सेल इज नॉट रिक्वायर्ड इन मेसोग्लिया. स्टिंगिंग सेल इज नॉट रिक्वायर्ड इन एंडोडर्म. तो स्टिंगिंग सेल इज एब्सेंट. जार्म सेल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ क्लास 2 एंड क्लास 3. क्लास 1 अगर होगा तो जार्म सेल एक्टोडर्म में होगा. तो दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लेयर्स of the body wall and what are their functions I have already discussed. एक सेल का फंक्शन, मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर रह गया, वो है स्टिंगिंग सेल. वो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. इसका तुम लोग नोट बना लेने का. So this is the discussion of stinging cell. Okay, so stinging cells are also called as nidocyte, nidoblast, alternate name दे दिया है. स्टिंगिंग सेल ज्यादातर कहां पाया जाएगा? जहां पे उसका ज्यादा यूज है वहां पाया जाएगा. कहां पे स्टिंगिंग सेल का सबसे ज्यादा यूज है? टेंटाकल, एंटेरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, माउथ के आसपास, हाइपोस्टोम, टेंटाकल, ये सब में ज्यादा प्रेजेंट है. तो डेंसली वहां पे ही ज्यादा पाया जाता है स्टिंगिंग सेल. ओके, अब स्टिंगिंग सेल जो है, इसका एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन ये है कि स्टिंगिंग सेल इज अ वन टाइम यूज सेल. मतलब एक बार अगर स्टिंगिंग सेल से किसी को स्टिंग कर दिया, उसके बाद वो सेल को बॉडी अंदर के तरफ खींचेगा, मतलब बॉडी लेयर के तरफ खींचेगा, इंटीरियरली खींचेगा, खींच के मेसोग्लिया के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करेगा. कहां? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में. एंड वहां पे उस सेल को डाइजेस्ट कर लिया जाएगा. डाइजेस्ट करके उस सेल से जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा. इंटरस्टिशियल सेल, टोटिपोटेंट सेल, वो अपने आप को स्टिंगिंग सेल में कन्वर्ट करेगा. करके जो यूज्ड स्टिंगिंग सेल है, जिसको हम लोगों ने अंदर की तरफ खींच के गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में डाइजेस्ट कर लिया, वहां पे वो टोटिपोटेंट सेल एक स्टिंगिंग सेल बन के जाके रिप्लेस कर देगा. ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि स्टिंगिंग सेल, सपोज ये बॉडी लेयर है, ये बॉडी लेयर है. अब यहां पे प्रेजेंट है स्टिंगिंग सेल, यहां पे स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट है. मान लो ये स्टिंगिंग सेल है. ये स्टिंगिंग सेल एक बार यूज कर लिया, ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, जीवीसी. स्टिंगिंग सेल ने एक बार स्टिंग कर लिया, उसके बाद ये मेसोग्लिया, ये एंडोडर्म, इस स्टिंगिंग सेल को अंदर के तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, खींचा जाएगा. यहां से ऐसे करके यहां पास किया जाएगा. ठीक है, एंड दिस यूज स्टिंगिंग सेल यहां पे जैसे आ जाएगा, इसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में ग्लैंडुलर सेल एंजाइम रिलीज करके डाइजेस्ट कर लेगा. एंड एक्टोडर्म में ही हमको पता है क्या प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल सेल, वो तुरंत अपने आप को एक नया स्टिंगिंग सेल में कन्वर्ट करेगा, करके ये यूज स्टिंगिंग सेल को रिप्लेस कर लेगा. ठीक है, सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जो मैंने ऊपर 1, 2 लिखा है. यही 2 पॉइंट है जो अभी बोला. ठीक है, now let's see how a stinging cell looks like. This is a diagram of stinging cell. Okay, in the stinging cell you can see this stinging cell is an inactive stinging cell. That means this is a stinging cell before stinging. ये stinging cell ने अभी तक किसी को sting नहीं किया है. तो ये stinging cell कैसा दिखता होगा? Inactive ऐसा दिखता होगा. ठीक है, फिर हम लोग एक्टिव में ये क्या बन जाएगा वो भी हम लोग देखेंगे. अभी पहले इसका लेवलिंग समझ लेते हैं. एक लीड के जैसा स्ट्रक्चर है जो किसी ना किसी चीज को एनक्लोज कर रहा है, बिकॉज लीड का काम ही है किसी ना किसी चीज को एनक्लोज करके रखना. सो हियर द लीड इज एनक्लोजिंग व्हाट? यू कैन सी इनसाइड द सेल देयर इज अनदर चेंबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट. दिस चेंबर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज capsule, or you can call it nematocyst. And I have been saying you, stinging cell whenever stings, it releases a toxin which is called as hypnotoxin. So inside this capsule, hypnotoxin is
प्रेजेंट, एंड इसी कैप्सूल को ये लीड ऐसे करके बंद करके रख रहा है। इनएक्टिव स्टिंगिंग सेल में सबसे ऊपर सबसे एक्सपोज्ड रीजन कौन सा है? एक स्टिंग के जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बुला रहे हैं? निडोसिल। सो निडोसिल सबसे ऊपर है। निडोसिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन द एक्टिवेशन ऑफ स्टिंगिंग सेल। क्या रोल है अभी समझेंगे आगे, ठीक है। तो ये निडोसिल सबसे बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहता है। अंदर कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर एक रीजन घुसा हुआ है जिसको हम लोग शेफ्ट या बट बोलते हैं। शेफ्ट या बट में हम लोग को छोटा छोटा स्पाइंस दिखाई देता है, एंड एपिकल रीजन से एक इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग थ्रेड ट्यूब बोलते हैं। तो इनएक्टिव स्टिंगिंग सेल में शेफ्ट या बट इज प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल, ठीक है। यही हम लोग को यहां पे दिखाई दे रहा है। कैप्सूल को सेल के अंदर फार्मली पकड़ने के लिए दो चीज है। एक है ये जो रेड 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 में मैंने ऐसे किया है, सपोर्टिंग फाइब्रिल, एंड दूसरा एक और थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है लासो। तो सपोर्टिंग फाइब्रिल एंड लासो दोनों एक साथ मिलके इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द कैप्सूल इनसाइड द सेल। ओके, सबका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा जब हम लोग एक्टिवेशन करेंगे इस सेल का। यू विल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। This cell does a very important function. It provides protection. It helps in stinging. Hence, this cell has to be directed. Its function has to be controlled. So, in order to control the functions of the cell, who is present inside the cell to monitor all the necessary changes? Nucleus is there. This is nucleus. Okay. So, this is a diagram of an inactive stinging cell. Now, let's discuss when this cell is going to get active. Okay. You can pause and make necessary notes. I am going to rub the upper ka part, and here I will make the diagram of a activated stinging cell, and we will see what are the changes that are present in an activated stinging cell. So if we draw an activated stinging cell, okay, what will we see? We will see a slight change, not a much of change. A slight change is what you can expect it over here. Okay, you can see the lid which was closed over there, here the lid has opened up, and we will see that due to the opening of this lid, this butt region has come out of the capsule. Here we can draw the capsule, okay, and this butt was present inside the capsule. Now the butt has gone out, and the thread tube का coiling भी reduce हो गया है। यहाँ पे स्पाइंस आर प्रेजेंट, अभी भी छोटा छोटा स्पाइंस प्रेजेंट है। यहाँ पे छोटा स्पाइंस प्रेजेंट है। कैप्सूल जो है वो अभी भी सपोर्टिंग फाइब्रिल ने पकड़ के रखा है। लासो इज स्टिल देयर, न्यूक्लियस इज स्टिल देयर टू डायरेक्ट ऑल द फंक्शंस। ओके, निडोसिल इज ऑल्सो देयर, एवरीथिंग इज देयर। जस्ट द डिफरेंस बिटवीन एन इनएक्टिव एंड एक्टिव स्टिंगिंग सेल इज द ओपनिंग ऑफ द लीड and allowing the butt to come out. ठीक है, now let's understand how this inactive cell becomes active. When does this inactive cell becomes active? Okay, how and when? This is what we should understand now. Okay, as per the diagram we have made, if I wait a second, let me rub this off. Okay, now if I say that suppose this is a tentacle, okay, suppose this is a tentacle of a Coelenterata, and in this tentacle this cell is present in an inactive form. So if I make this cell like this here, okay, if I make this cell like this here, like this, okay, then you can see that if this cell is placed like this one cell is my palm. If I place it like this in the tentacle, which portion will be the most protruding portion? Nidosil, is not it? So whenever any animal will come and it will touch, or it will try to touch, or it will come in contact with the stinging cell, what is the first thing that it is going to touch? It is going to touch whom? The nidosil. The first thing, because nidosil is the most projected part in an inactive stinging cell. So whenever any organism will come in contact with this animal, or come in contact with the stinging cell of this animal, which is the first part of the inactive stinging cell which will touch that particular organism? The nidosil. So nidosil here will do the triggering mechanism. Okay, so whenever the nidosil is pressed, है ना, whenever the nidosil is pressed, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे that whenever the
nidosyl is pressed. Now due to the pressing of nidosyl, what is going to happen? Whenever the nidosyl is going to be pressed, okay, there are present certain chemicals underneath these nidosyls. Okay, there are present certain chemicals underneath these nidosyls. Okay, so this will result in the release of those chemicals. ठीक है, इसके एक्टिवेशन का मैकेनिज्म का नोट मैं अटैच करके भेजूंगा, यहां पे बस समझने का कोशिश करो. ठीक है, यहां पे मैं नोट्स नहीं दूंगा एक्टिवेशन का नोट्स मैं सेंड करूंगा, तुम लोग वहां से देख के लिख सकते हो. यहां पे बस समझने का कोशिश करो दैट निडोसिल के अंडरनीथ देयर आर प्रेजेंट सम स्टेरॉइड केमिकल्स, सम केमिकल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ फैट. So there are present some steroid chemicals. So whenever anything comes and presses this nidosyl, it results in the release of those steroid chemicals. Okay, now these steroid chemicals will be released from there, and these chemicals will come and it will bind along the cell membrane of this particular cell. This is the cell membrane, this is the cell membrane. Okay, so these chemicals binds to the whom? It binds to the cell membrane. It will bind with the cell membrane of this particular cell. The moment these chemicals binds with the cell membrane, what this is going to cause? This is going to change the what? This is going to change the membrane permeability. Okay, so whenever these chemicals will come and it will bind to the cell membrane will become more permeable. And due to that permeability, due to that attainment of permeability, what is going to happen next? What we are going to see that due to the change in membrane permeability, now the membrane is more permeable. It will allow more exchange through it. Now due to this factor, what will happen? This animal lives in aquatic condition. It is surrounded by water all the time. Now due to the change in the membrane permeability, what will happen? Water rushes inside. ठीक है, ध्यान से. अब क्या हो जाएगा? बाहर से यहां पे हम लोग करते हैं, बाहर से अब क्या होगा? वाटर विल स्टार्ट टू मूव इनसाइड. ठीक है, वाटर विल स्टार्ट टू मूव इनसाइड बिकॉज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी हैज चेंज. नाउ इट इज मोर परमेबल, सो वाटर फ्रॉम द आसपास का जगह विल ट्राई टू एंटर इनसाइड एंड इट विल एंटर. जैसे ही पानी अंदर घुसेगा, पानी क्या चाहता है? पानी चाहता है कि मैं सेल के अंदर का सारा जगह ले लूं, मुझे सब जगह चाहिए. आई वांट टू ऑक्युपाई द एंटायर स्पेस. ओके, सो पानी जब अंदर घुसेगा, सो वाटर विल लाइक टू थ्रो दिस कैप्सूल आउटसाइड. पानी चाहता है कि कैप्सूल अंदर ना रहे, मैं अंदर रहूं, बाकी सब सामान बाहर निकल जाए. तो वाटर अंदर घुस के पहला काम जो वाटर चाहता है वो क्या चाहता है? कि कैप्सूल को धक्का मार के बाहर निकालो. दैट इज द रीजन यहां पे हम लोगों ने कैप्सूल को पकड़ के रखने का दो मैकेनिज्म्स हम लोगों ने यूज किया है. एक क्या? सपोर्टिंग फाइब्रिल. दूसरा क्या? लासो. दो चीज से हम लोगों ने कैप्सूल को पकड़ के रखा है. बिकॉज सेल का नाम है स्टिंगिंग सेल. स्टिंग करने के लिए टॉक्सिन चाहिए. टॉक्सिन प्रेजेंट है कैप्सूल के अंदर. पानी अगर कैप्सूल को ही निकाल देगा तो सेल का सिग्निफिकेंस ही खत्म. इसलिए जब पानी अंदर घुसता है, घुस के पानी चाहता है कि मैं कैप्सूल को निकालूं. ठीक है ना? तो पानी जब कैप्सूल को निकालना चाहेगा, कैप्सूल निकलेगा नहीं क्योंकि लस्सो एंड सपोर्टिंग फाइब्रिल ने उसको पकड़ के रखा है. अब पानी हार मान जाएगा और हार मान के पानी अब क्या होगा? पानी घुसना चालू होगा. किसके अंदर? पानी कैप्सूल के अंदर जाना चालू होगा. अब कैप्सूल के अंदर जब पानी जाएगा तो कैप्सूल के अंदर क्या बढ़ेगा? टार्गोर प्रेशर बढ़ेगा. टार्गोर प्रेशर तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? सेल के अंदर जो एक प्रेशर डेवलप होता है, मतलब प्रेशर व्हिच जैसे कि अगर हम लोग टार्गोर प्रेशर कैसे समझाओ? अगर हम लोगों ने एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो पानी क्या होगा? सेल के अंदर चला जाएगा. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम लोगों ने एक सेल को डाला, दैट मीन्स प्योर वाटर बाहर ज्यादा है तो प्योर वाटर बाहर से सेल के अंदर जाएगा. तो जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल को डालेंगे एंड द वाटर विल गो इनसाइड द सेल, तो सेल के एक अंदर से प्रेशर लगेगा कि नहीं? सेल मेम्ब्रेन मतलब फटू के मतलब ऐसा हो जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन फटने के जैसा हो जाएगा. तो एक अंदर से जब सेल के अंदर से जब एक कंटेंट बढ़ने से जो एक प्रेशर क्रिएट होगा उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? टार्गोर प्रेशर. सपोज तुम एक टायर में तुम हवा भरा ही रहे हो तो हवा क्या कर रहा है? टायर के अंदर जाके अंदर से वो टायर पे प्रेशर लगा रहा है कि नहीं?
उसको टारगेट प्रेशर बोलते हैं। लाइक दैट इज टारगेट प्रेशर। ठीक है, तो अब ऑलरेडी इस कैप्सूल के अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, हिप्नोटॉक्सिन। ऑलरेडी इसमें क्या प्रेजेंट था, शेफ्ट घुसा हुआ था, ये सब ऑलरेडी इस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। अब जब वाटर इस कैप्सूल के अंदर घुसेगा और वाटर इस कैप्सूल के अंदर घुस के एक एक्स्ट्रा मेंबर एक ऐड हो गया कैप्सूल के अंदर, तो कैप्सूल के अंदर का टारगेट प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा। उस टारगेट प्रेशर बढ़ने के वजह से ये जो तुम्हारा शेफ्ट दिखाई दे रहा है, ये शेफ्ट अभी कैसा है कैप्सूल के अंदर, ऐसा है। यहां पे प्रेशर बढ़ रहा है, अंदर पानी घुसने की वजह से यहां पे प्रेशर बढ़ रहा है, शेफ्ट ऐसे है। उस प्रेशर की वजह से ये शेफ्ट क्या करेगा, ऐसे करके खुल जाएगा। देखो कैप्सूल के अंदर ऐसे था, प्रेशर बढ़ रहा है, वो प्रेशर लीड को खोलेगा, और अंदर जो ये शेफ्ट था ये ऐसे था, ये अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे। इसलिए देखो यहां पे शेफ्ट ऐसे है, यहां पे शेफ्ट ऐसे हो गया है। वो पानी अंदर घुस के टारगेट प्रेशर बढ़ा के शेफ्ट को रिलीज कर दिया है। जैसे ही शेफ्ट को रिलीज किया जाएगा वाटर और अंदर घुसेगा, वाटर और अंदर घुसेगा। अब वाटर किसको निकालना चाहेगा, अब वाटर निकालना चाहेगा किसको, ये जो वाटर अंदर घुसा है ये वाटर अब निकालना चाहेगा हिप्नोटॉक्सिन को। शेफ्ट को तो पहले ही निकाल दिया है, अब हिप्नोटॉक्सिन को निकालना चाहेगा। जैसे जैसे वाटर अंदर घुस के हिप्नोटॉक्सिन को प्रेस करेगा ऊपर के तरफ, हिप्नोटॉक्सिन यहां से जाएगा किधर, शेफ्ट में, एंड शेफ्ट से ये हिप्नोटॉक्सिन ऊपर के तरफ जाके ये हिप्नोटॉक्सिन विल स्टार्ट टू कम आउट, वेयर दिस हिप्नोटॉक्सिन विल स्टार्ट टू कम आउट इनटू दिस थ्रेड ट्यूब। और जैसे ही ये टॉक्सिन थ्रेड ट्यूब में आना चालू हुआ, ये थ्रेड ट्यूब में क्या होगा, टारगेट प्रेशर थ्रेड ट्यूब का भी बढ़ेगा, ट्यूब के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। उस प्रेशर की वजह से ये थ्रेड ट्यूब हो जाएगा सीधा, और सीधा होकर स्टिंग कर देगा। ठीक है, आई होप समझ में आया है कि जैसे हिप्नोटॉक्सिन शेफ्ट के थ्रू निकल के यहां से जैसे ही थ्रेड ट्यूब में आना शुरू होगा, थ्रेड ट्यूब का टारगेट प्रेशर बढ़ेगा, जो थ्रेड ट्यूब को जो अभी ऐसे टेढ़ा बेका है उससे सीधा कर देगा। थ्रेड ट्यूब एकदम स्ट्रॉन्ग सीधा एक स्टिंग के जैसा हो जाएगा और होके स्टिंग कर देगा। इसका स्टिंग इतना पावरफुल है कि ये मोलास्का का जो शेल है उस शेल को भी भेद सकता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो स्टिंग थ्रू द शेल ऑफ अ मोलास्का, इट इज सो पावरफुल। ओके, हमारा स्किन तो कुछ भी नहीं है, मोलास्का का शेल में छेद कर देगा। ठीक है ना, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट ये हमारा घर का जो स्नेल है जिसमें पैर रखने से वो शेल टूट जाता है, इट इज ऐसा शेल नहीं। जो समुंदर का एनिमल्स होता है, मैं उनका शेल के बारे में बात कर रहा हूं, जिनको हथौड़ा मार मार के भी तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, उस तरीके का शेल को भी ये प्रिक करने का एबिलिटी रखता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ स्टिंगिंग सेल वर्क्स एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्टिंगिंग सेल। ये अभी मैंने तुम लोग को यहां पे समझा दिया है। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म का पोर्शन मैं तुम लोग को नोट में भेजूंगा। टाइप्स ऑफ स्टिंगिंग सेल अभी हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, टाइप्स तुम लोग यहां से लिख लोगे, बस सिर्फ जो मैकेनिज्म का हिस्सा है दैट यू कैन राइट इट फ्रॉम द नोट्स दैट आई विल सेंड एज एन अटैचमेंट। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। कुछ भी डाउट हो कल डाउट क्लास में मुझसे पूछ लेना, हाँ सुबह। ठीक है, सो वीडियो ऑलरेडी 32 मिनट्स क्रॉस कर गया है, इसलिए मैं जस्ट यहाँ पे डिस्कशन करके छोड़ देता हूँ। अटैचमेंट जब भेजूंगा ही तो इनका भी जो नोट्स है वो मैं अटैचमेंट में ही डाल दूंगा। ठीक है, तो पेनेट्रेंट, स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट, स्टीरियोलाइन ग्लूटिनेंट, वॉल्वेंट, दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ स्टिंगिंग सेल। ठीक है, अब इन 4 टाइप्स ऑफ स्टिंगिंग सेल में जो सेल का नाम है स्टिंगिंग सेल, माने स्टिंग करने का एबिलिटी रखने वाला, वो सिर्फ इसमें है। एंड पेनेट्रेंट जो है वो है लार्जेस्ट स्टिंगिंग सेल, वॉल्वेंट जो है वो है स्मॉलेस्ट स्टिंगिंग सेल। ये जो मैंने लिखा है ये ऑर्डर मैंने अकॉर्डिंग टू द साइज लिखा है। सबसे बड़ा ये, इससे थोड़ा छोटा ये, इससे थोड़ा छोटा ये, और ये सबसे छोटा वाला। ठीक है ना, स्टिंगिंग जो काम है वो स्टिंगिंग काम सिर्फ ये करता है। जैसे हम लोगों ने स्टिंगिंग सेल में लिखा था एनकरेज फूड कैप्चरिंग, तो एनकरेज फूड कैप्चरिंग जो है वो बेसिकली इन तीनों का काम है। इसका काम जो है, इसका काम है स्टिंग करना। तो स्टिंग ये प्रीडेटर को भी कर सकता है, प्रे को भी कर सकता है। ठीक है, एंड पेनेट्रेंट इज द वन जिसका डायग्राम बना के अभी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये दोनों जो है, इन दोनों का काम है, इन दोनों का कैप्सूल प्रेजेंट है लेकिन वो कैप्सूल रिड्यूस्ड है, माने पेनेट्रेंट के लेवल पे वो कैप्सूल छोटा है। ठीक है, इन दोनों का जो बड है वो बड भी उसके कंपैरिजन में छोटा है। इसका बड बड़ा है क्योंकि वो बड जब बड़ा होगा, कोनिकल पॉइंटेड होगा, तो वहां से जब हिप्नोटॉक्सिन निकलेगा तो थ्रेड ट्यूब में टारगेट प्रेशर क्रिएट होगा, थ्रेड ट्यूब सीधा होकर स्टिंग कर देगा। इसलिए इसमें बड भी बड़ा है, कैप्सूल भी बड़ा है, क्योंकि टॉक्सिन कैरी कर रहा है। इनका काम स्टिंगिंग का नहीं है, तो इसलिए इनका कैप्सूल जो है वो ऑलरेडी छोटा है। जो बड है वो बड भी छोटा है बिकॉज उनको स्टिंगिंग का काम नहीं करना है, थ्रेड ट्यूब भी रिड्यूस्ड है। इनका कैप्सूल से क्या निकलता है, इनका कैप्सूल से निकलता है सम स्टिकी फ्लूइड, एंड उस स्टिकी फ्लूइड के मदद से ये लोग क्या करता है,
ये जो दोनों स्टिंगिंग सेल है, ये दोनों स्टिंगिंग सेल इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लेटरल सरफेस एंड बेसल सरफेस में रहता है अलोंग विद इपिथेलियो ग्लैंडुलर सेल। एंड इनका जो स्टिकी सब्सटेंस जो निकलता है वो एनकरेज माने कहीं पे ग्रिप बनाने में, कहीं पे अपने आप को सेटल करने में ये दोनों उस फ्लूइड का सिक्रेशन करता है। एज वेल एज ये दोनों फूड कैप्चरिंग में भी मदद करता है। ठीक है, ये दोनों ही, तो ये दोनों एनकरेज में मदद करेगा एंड फूड कैप्चरिंग। वॉल्वेंट जो है उसका कैप्सूल है ही नहीं, तो वॉल्वेंट का कैप्सूल है ही नहीं या बहुत छोटा है और उसके कैप्सूल में कोई फ्लूइड नहीं है। इनके कैप्सूल्स में स्टिकी फ्लूइड है, इसके कैप्सूल में हिप्नोटॉक्सिन है, इसके कैप्सूल में देयर इज नथिंग, सिर्फ थ्रेड ट्यूब घुसा हुआ है, बट भी नहीं है, बट भी एब्सेंट है, सिर्फ थ्रेड ट्यूब है कैप्सूल के अंदर। तो जब जब ये वाला एक्टिव होता है तो ये वाला तभी एक्टिव होता है जब इसको फूड कैप्चर करना होता है। इसका थ्रेड ट्यूब बाहर निकलता है, निकल के प्रे को कॉइल करता है, कॉइल करके मुंह के पास ले आके खा लेता है। ठीक है, तो इसका काम है ओनली फूड कैप्चरिंग। इसका थ्रेड ट्यूब जब भी बाहर निकलेगा, सिर्फ थ्रेड ट्यूब है, इसमें कैप्सूल भयंकर रिड्यूस्ड विथ नो फ्लूइड। ठीक है, बट एब्सेंट, डायरेक्ट एब्सेंट, सिर्फ जो थ्रेड ट्यूब है वो प्रेजेंट होता है कैप्सूल के अंदर। जैसे ही सेल एक्टिवेट होगा, थ्रेड ट्यूब बाहर निकलेगा, निकल के प्रे को कॉइल करेगा, कॉइल करके खा लेगा। इनका जब थ्रेड ट्यूब बाहर निकलेगा, उस थ्रेड ट्यूब से कुछ स्टिकी सिक्रेशन निकलेगा जो फूड कैप्चरिंग भी कर सकता है, लेकिन मेनली एनकरेज का काम करता है, दैट मींस अपने आप को कहीं पे सेटल करने का। पेनेट्रेंट प्रॉपर स्टिंगिंग मैकेनिज्म जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो करेगा। तो इसका नोट भी मैं तुम लोगों का अटैच कर दूंगा, तो उससे देख के लिख लेना है। तो यहाँ पे सिलेंडरेटा खत्म होता है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होगा तो वो भी मैं अटैचमेंट में भेज दूंगा। ये सब देख के नोट्स बना लो। नेक्स्ट फाइलम है टिनोफोरा, एंड टिनोफोरा बहुत छोटा फाइलम है, उसका डिस्कशन आई थिंक एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो टिनोफोरा का वीडियो 1-2 दिन में मैं छोड़ दूंगा। इन सब का नोट्स बना लो, संडे का एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ो।